سہیل وڑائی صاحب. محترم انور مسعود صاحب تشریف لائیے. جناب خالد مسعود خان صاحب اسٹیج پر تشریف لائیے. سر یہ کرسی آپ مجھے دیکھیے پلیز، میں آپ کو بہت تنگ کر رہا ہوں، الگ سے معذرت. خواتین حضرات، جناب جعفری صاحب کچھ فرمانا چاہتے ہیں، اس کے بعد مشاعرے کا آغاز ہوگا. یہ اگر جو حضرات پیچھے بیٹھے ہیں اگر چیئرز لے کر آگے آ جائیں تو انہیں زیادہ مزہ آئے گا مشاعرے کا نا. اگر چیئرز لے کر آپ لوگ آگے آ جائیں، جو لوگ پیچھے پیچھے بھی بیٹھے ہوئے ہیں بچوں کو پیچھے کر دیں کوئی حرج نہیں، لیکن آپ لوگ اپنی چیئرز لے کر آگے آ جائیں. پہلے کے مشاعرے سے پہلے چھوٹا سا ہمارے خاص طور پہ یہ پروگرام جو منعقد ہوا ہے اس میں بہت سے لوگوں کا شکریہ ادا کرنا واجب ہے. ویسے تو تعداد زیادہ ہے اور لیکن یہ ہے کہ سمبولیکلی کہ جو لوگ فرنٹ پہ رہے، سارے انتظامات کیے اور خاص طور پہ تعلیم کو انہوں نے اپنی ذمہ داری سمجھا اور اس کے انعقاد کو بھرپور طریقے سے انجام دیا، ان کو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری طرف سے غزالی ٹرسٹ کی جانب سے ایک ٹوکن ہے لو کا، ایک اپریسیشن کا، تاکہ وہ یاد رکھیں اس چیز کو. میں سہیل وڑائی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے دست مبارک سے سب سے پہلے یہ ہم ان کو خاص طور پہ غزالی کی طرف سے ایمبیسڈر آف ایجوکیشن کا جو ہے ہم خطاب دے رہے ہیں محترم سہیل زرار صاحب کو کہ تشریف لائیں. آپ نے بہت محنت کی اس پروگرام کے کامیاب انعقاد کے لیے، ان کی طرف بھرپور تالیاں سب لوگ ذرا. یہ ہمارے ہیرو ہیں، ہمارے ایمبیسڈر ہیں ایجوکیشن کے. غزالی ٹرسٹ کی جانب سے جو ہے یہ ایک چھوٹا سا ٹوکن ہے. ہمارے دوسرے جو دوست ہیں قاسم محمود بابا صاحب کہ جنہوں نے اس پروگرام کے انعقاد میں بھرپور تعاون کیا، ان کے لیے بھرپور تالیاں جی. وہ محترم سہیل وڑائی صاحب سے اپنا سرٹیفکیٹ جو ہے ایمبیسڈر آف ایجوکیشن کا وصول کریں گے اور ہمیں توقع ہے کہ آئندہ بھی دیہی علاقوں میں تعلیم کے لیے یہ جس طرح سفیر بنے ہیں اپنے خدمات سر انجام دیتے رہیں گے. آصف تارڑ صاحب ایک اور بڑا روشن نام، ان سے میں درخواست کروں گا کہ اب تشریف لائیں. آصف تارڑ صاحب کہاں ہیں جی؟ جی تالیاں جی بھرپور آصف بھائی کے لیے. ایکسیلنٹ آصف بھائی ہمارے ایمبیسڈر ہیں ایجوکیشن کے اور دیہی بچوں کی سرپرستی کر رہے ہیں. آج کی تقریب کو چار چاند لگانے میں ان کا بھی بہت نمایاں کردار ہے. اور ہمارے آخری دوست، ویسے تو بہت سے لوگ ہیں لیکن عقیل دانش صاحب، رسپیکٹڈ عقیل دانش صاحب، ان سے بھی میں درخواست کروں گا کہ وہ سر تشریف لائیں اور سہیل وڑائی صاحب سے جو ہے اپنا سرٹیفکیٹ ایمبیسڈر آف ایجوکیشن کا جو ہے وصول کریں جی. عقیل دانش صاحب جی، ان سب لوگوں کے لیے بھرپور تالیاں جنہوں نے یہ اتنی خوبصورت مجلس سجائی ہے جی. دوبارہ جی السلام علیکم خواتین حضرات. جو کہ اسلامک مشن اور غزالی ایجوکیشن نے آج کی محفل کا اہتمام کیا، اس سے پہلے کہ شعر و سخن آپ کی روح کو اجال دے، میں دو جملے عرض کرنا چاہتا ہوں. تعلیم کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ سرکار دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا جو پہلا لفظ نازل ہوا وہ تھا اقرا، اور اس لفظ سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ تعلیم کی اسلام میں کیا اہمیت ہے. اس کے بعد جس وقت مسجد نبوی کی بنیاد رکھی سرکار دو عالم نے، فوراً اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک چبوترا بنایا گیا جس کا نام تھا صفہ، اور اس صفے پر سرکار دو عالم کے ساتھی
दिन रात दर्स व तदरीस में मुब्तला होते थे और अपना पैगाम लोगों तक पहुंचाते थे। ये दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी कहलाती है और वो लोग पहले मौलवी असहाब सुफ़ा। इससे मालूम होता है कि तालीम की क्या अहमियत है। अभी सुहेल वलाइद साहब ने जिक्र किया था अलीगढ़ का। बाबा उर्दू ने एक जगह लिखा कि कसरे पाकिस्तान में पहली ईंट उसी मर्द पीर यानी सर सैयद अहमद खान ने रखी थी। और इसमें कोई शक नहीं कि अलीगढ़ के सपूतों ने जिस तरह पूरे बर्र सग़ीर में अपने दौरे करके और पाकिस्तान की कामयाब बनाया, पाकिस्तान की मुहिम को, वो अपनी जगह तारीख़ का एक हिस्सा है। अब हम यहाँ यूरोप में, मगरिब में तालीम के लिए जो कुछ काम कर रहे हैं, आने वाला कल यकीनन अपनी तस्करे में हमें भी याद रखेगा। गजाली ट्रस्ट के यहाँ लोग मौजूद हैं और जो कि इस्लामिक मिशन ने तो पिछले 50 साल से इस्लाम की और तालीम की जो खिदमत की है, उसके लिए सिर्फ यही कहा जा सकता है कि ये निस्फ सदी का किस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं। मुझे इल्म है ख़वातीन हज़रात कि आप बेताब हैं हमारे 3 मुअज़्ज़ज़ यहाँ मेहमान जो मौजूद हैं उनको सुनने के लिए। मैं सुहेल वलाइद साहब से अर्ज़ करता चलूँ कि उनकी उस हैसियत की कई जिहतें हैं। बहुत अच्छे सहाफ़ी हैं, बहुत दकीक और गहरी नज़र है उनकी, न सिर्फ अदब पर और सहाफ़त पर, बल्कि हालात हाज़िरा को जिस तरह वो देखते हैं और जिस तरह उसका तज्ज़िया करते हैं। उन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया था GTV पर और उनका एक जुमला बहुत मशहूर हुआ था। वो जुमला ये था कि ये तो खुला तज़ाद है। 2 शेर उनकी नज़र करना चाहता हूँ मैं। दोस्त सबके सुहेल हैं दानिश, दोस्त सबके सुहेल हैं दानिश, इनके दिल में कोई अनाद नहीं, इनके दिल में कोई अनाद नहीं, जो ये कहते हैं बस वो करते हैं और ये तो खुला तज़ाद नहीं। हमारे यहाँ एक बहुत मारूफ खुशगो जनाब खालिद मसूद साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है। उन्होंने अपने अंदाज से, अपने अतवार से, अपने अशार से दिलों में मोहब्बतों की जो शमें रोशन की हैं, उसकी रोशनी दूर दूर तक अब पाकिस्तान से निकल कर दुनिया में, मैं कहता हूँ बिला मुबालगा, जहाँ उर्दू से मोहब्बत करने वाले लोग मौजूद हैं, वो रोशनी वहाँ तक पहुँची है। और दुखों की और मसाइब की दुनिया में अगर कोई आदमी तबस्सुम के फूल खिला दे किसी के लबों पर, तो मैं उसे अपने अहद का सबसे बड़ा मुसले समझता हूँ, इसलिए कि दिल बदस्तावर के हज बरस्त। उनकी खिदमत में मैंने गुजारिश की कि शेर इनके चमकते हुए मोती की तरह, शेर इनके हैं चमकते हुए मोती की तरह, बज़्म यारा में गुहर बार हैं खालिद मसूद, बज़्म यारा में गुहर बार हैं खालिद मसूद, अपने अल्फाज से रोतों को हंसा देते हैं, किश्ते वीरा में समंजार हैं खालिद मसूद। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे अहद के 3 नाबग़ा रोज़गार हस्तियाँ यहाँ मौजूद हैं और हमारे हर दिल अजीज़, जिनके अशार लोग दूसरों को सुनाना अपने लिए बाइस फ़ख्र समझते हैं। उनके 2 शेर मैं पेश करता चलूँ कि मरीज़ कितने तड़पते हैं एम्बुलेंसों में, मरीज़ कितने तड़पते हैं एम्बुलेंसों में, और उनका हाल है ऐसा कि मरने वाले हैं, मगर पुलिस ने ट्रैफिक को रोक रखा है, यहाँ से कौम के खादिम गुजरने वाले। हमारे यहाँ का बहुत बड़ा नाम, एक जुमला अर्ज़ करता चलूँ कि मिज़ाह निगारी में इस वक्त अनवर मसूद सफ़े अव्वल के शोरा में हैं, और जिस तरह नस्र में और मिज़ाह निगारी में हमारे मुश्ताक़ अहमद यूसुफ, ये 2 आदमी हम सब के लिए बड़े बाइस फ़ख्र हैं। सो इन तीनों को मैं खैर मक़दम करता हूँ। बज़्म सुखन की तरफ से भी जमात फोरम के अहबाब मौजूद हैं यहाँ। अभी सुहेल ज़रदार साहब ये बज़्म सुखन के रूह रवा हैं और इन्होंने पिछले 2 साल से बज़्म सुखन का इफ्तिताह किया है, आगाज़ किया है। ये इस्लाम चैनल जो उर्दू TV है, उस पर बज़्म सुखन का ये एहतमाम करते हैं जुमे की हर शाम को, और अब इनकी काविशों से बज़्म सुखन TV से निकल कर शहर में आ गया है। एजाज़ है ये बज़्म सुखन का कि हर तरफ
पैदा हुए आज सुखनवर नए नए। इस वक्त हमारी महफिल में कम से कम 7 लोग ऐसे हैं जिनका ताल्लुक किसी न किसी तरह बिजनेस सुखन से है। मैं मोहतरम अनवर मसूद साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि इस मुशायरे की सदारत में कबूल फरमाएं। मेरी तरफ से बहुत सी तालियाँ उनके लिए। हमारे मेहमान एजाजी जनाब खालिद मसूद साहब, वो हमारे एजाजी आज के मेहमान एजाजी हैं, और सुहेल वराई साहब, इन दोनों के लिए इस्तकबालिया तालियाँ। ख़वातीन हज़रात, मैं सिर्फ 2 शेर अर्ज़ करना चाहता था, इसलिए कि हमारे यहाँ लोग बहुत बेताब हैं हमारे इन मेहमानों को सुनने के लिए। लिहाजा हम सब यहाँ के मकामी जितने हजरात हैं, शायर और शायरात, बहुत कम से कम जितना भी मुमकिन हो वो अपने कलाम अब तक पहुँचाएँगे। मैं अर्ज़ करता हूँ, एक ख़ता हमेशा फरमाइश होती है कि शफ़ाफ़ तसव्वुर के सुबुक सागर में, शफ़ाफ़ तसव्वुर के सुबुक सागर में रक़ास शगुफ्ता से कमल होते हैं। ये बात अलग ठहरी कि तामीर न हो, हर ज़हन में कुछ ताज महल होती है। वाह वाह।